Good morning students. Today we will start new chapter 8 which is controlling. Students, you know that we have already done different functions of management like planning, organizing, staffing, directing, and now the next function is controlling. We have already done planning, organizing, staffing, directing, and now we are going to start controlling. Controlling the next function of management. So controlling means what? Controlling is also one of the most important function of management. What do you mean by controlling? Controlling means to control the activities. To control the activities in an organizations. How activities are controlled? We can control the activities by comparing the actual results with the standard performance or standard results. So controlling means what? Controlling can be defined as a process of ensuring that actual activities conform to planned activities. Yes students, what do you mean by controlling? Controlling means it is a process. Why it is called as a process? Because it involves a series of steps. It involves a series of steps. That is why it is considered as a process. Process of ensuring that actual activities are conform to planned activities. It means that actual activities are performed according to the planned activities in the organization. Or we can say that we will compare the actual results or actual performance with the standard performance. Why we will compare the actual performance with the standard performance? To find out deviation. Deviation means difference. Difference between actual performance and standard performance, if any. If there is any deviation, then we have to take corrective. Then we have to take corrective measures to prevent recurrence of deviation. To prevent recurrence of deviation. So student, we can also say that controlling is a process. Controlling is a process of comparing the actual results or actual performance with the standard performance, finding out deviation if any. Then we have to take corrective measures or corrective actions. Why? To prevent recurrence of deviation. We have already done the meaning of controlling in chapter number 1. हमने क्या पढ़ा था वहाँ पर कि controlling का मतलब क्या है? कंपेयर करना एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ और ये चेक करना कि कहीं कोई डिफरेंस तो नहीं है, कहीं कोई डेविएशन तो नहीं है. अगर कोई डेविएशन है तो उसके लिए करेक्टिव एक्शंस लेना, करेक्टिव मेजर लेना, ताकि वो डेविएशन फ्यूचर में अराइज ना हो. वी कैन टेक वन एग्जाम्पल. फॉर एग्ज़ाम्पल आवर स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस. हमने जो है अपनी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस ये डिसाइड की या फिर सेट की कि हम जो है 10,000 यूनिट्स बनाएंगे इन अ मंथ. हमने अपने लिए मंथली टारगेट सेट किया. वी हैव टू सेट that standard performance is 10,000 units in a month. Then we perform activities and at the last of the month we will compare the actual performance. We will find out, measure the actual performance, and we measure the actual performance which is 9,500 units.
Actual performance is at the end of the month is 9,500 units. Is there any difference? Yes, there is a difference of 500 units. So first of all we will find out the cause why there is this difference. Difference is called as deviation. Difference between the standard performance and actual performance is called deviation. So first of all we will find out the causes of deviation कि आखिर ये जो ये डिफरेंस आया है इसका मेन कारण क्या है कि मेरे पास एम्प्लॉयज़ प्रॉपर अवेलेबल नहीं थे, एम्प्लॉयज़ एफिशिएंट नहीं थे, मशीनरी की कोई प्रॉब्लम थी, लाइटनिंग की क्या कोई प्रॉब्लम थी. तो हम इसका कारण पता लगाएंगे और कारण पता लगाने के बाद हम जो है करेक्टिव मेजर्स लेंगे ताकि वो डेविएशन फ्यूचर में अराइज ना हो. अगर एम्प्लॉयज़ एफिशिएंट नहीं थे तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे. अगर उनकी इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम थी, जनरेटर अवेलेबल नहीं था तो जनरेटर को आप वहाँ पर लगवाओगे. ठीक है, मशीनरीज में कोई प्रॉब्लम थी तो नई लेटेस्ट मशीनरी आप लेकर आ सकते हो या फिर मशीनरीज की प्रॉपर मेंटेनेंस कराएंगे ताकि ये जो डेविएशन इस बार आई है फ्यूचर में अराइज ना हो. तो स्टूडेंट्स, प्लानिंग कंट्रोलिंग क्या है हमारा? कंट्रोलिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि एंश्योरिटी प्रोवाइड कराई जाती है कि एक्चुअल एक्टिविटीज़ हमारी प्लान्ड एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग हों. एंड इन इट वी कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस. वी विल फाइंड आउट डेविएशन एंड टेक करेक्टिव मेजर्स सो दैट दीज डेविएशंस विल नॉट अराइज इन द फ्यूचर. हमने एक बात की यहाँ पर डेविएशन की. डेविएशंस हमारी जो है जनरली यहाँ पर हम इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. एक होगी हमारी ज़ीरो डेविएशन, एक हमारी पॉजिटिव डेविएशन और एक है हमारी नेगेटिव डेविएशन. व्हाट डू यू मीन बाय ज़ीरो डेविएशन? इन केस देयर इज़ नो डेविएशन बिटवीन द एक्चुअल प्रोडक्शन एंड द स्टैंडर्ड प्रोडक्शन और द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस. एक एग्जांपल लेके चलते हैं. 100 यूनिट्स बनाने के लिए कहा था, आपकी 100 यूनिट्स ही बनी हैं. देयर इज़ नो डिफरेंस, दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है तो यहाँ पर डेविएशन क्या होगी? ज़ीरो. बट 100 यूनिट्स बनाने के लिए कहा था, आपने जो है बनाई कितनी? 110 यूनिट्स. आपने कितनी यूनिट्स बनाई? 110 यूनिट्स. देन देयर विल बी 10 यूनिट्स ज़्यादा बनाई हैं तो इट इज़ कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव डेविएशन. बट अगर आपसे कहा गया था ये आपका स्टैंडर्ड है, ये आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है, लेकिन अगर आपकी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस 100 यूनिट्स थी, एक्चुअल परफॉर्मेंस आपकी मान लो 90 यूनिट्स है, देन देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ 10 यूनिट. इट इज़ कंसिडर्ड एज अ नेगेटिव डेविएशन. जब ज़ीरो डेविएशन है इट मीन्स आपको जैसा कहा गया था आपने प्रॉपर्ली वर्क किया है, कोई यहाँ पर करेक्टिव एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है. पॉजिटिव डेविएशन है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि डेविएशन के पॉजिटिव होने का क्या रीज़न है. यहाँ पर भी हम देख सकते हैं पॉजिटिव डेविएशन है तब भी यहाँ पर हमें कोई ज़्यादा करेक्टिव मेजर लेने की ज़रूरत नहीं होती. लेकिन अगर आपके एम्प्लॉयज़ सभी की जो है यहाँ पर परफॉर्मेंस यही थी कि 110 यूनिट्स कहा गया था बनाने, 100 यूनिट्स कहा गया था और सभी एम्प्लॉयज़ ने 110 यूनिट्स बनाई हैं, इट मीन्स स्टैंडर्ड्स आपके कम सेट किए गए थे तो हमें स्टैंडर्ड्स को रिवाइज़ करने की ज़रूरत है. सो अगर हमारे एक्चुअल परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा है स्टैंडर्ड से तो इट मे बी पॉसिबल कि स्टैंडर्ड्स आपके प्रॉपरली नहीं सेट किए गए, दैन स्टैंडर्ड शुड बी रिवाइज. बट इन केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन तो हम यहाँ पर पता लगाएंगे व्हाट इज़ द कॉज ऑफ द डेविएशन, दैन वी विल टेक द करेक्टिव मेजर्स. तो आई थिंक इट इज़ क्लियर दैट मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग.